کیپٹن مالک رام کو سجاول کا کور نیم دیا گیا تھا، جس نے عارف میاں کو ایک ہفتے میں تخریب کاری کے اچھے خاصے داؤ پیچ سکھا دیے۔ اسی ایک ہفتے کے ہنگامی پروگرام میں انہیں جلسہ گاہوں میں ہنگامہ کرنا، توڑ پھوڑ، بلوا، لوٹ مار، دہشت گردی، آگ لگا کر بھاگنا اور پولیس کے حفاظتی اقدامات کو توڑنے کی تربیت دی گئی۔ میناکشی اس درمیان اس پر جسمانی طور پر نچھاور ہو جاتی۔ شراب اس کی عادت بن گئی تھی اور اس کی جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی۔ را کی ہدایت پر اگلے چند روز بعد وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے پر اسے ایک خطی رقم دی گئی تھی۔ جو سامان برائے فروخت وہ یہاں سے لے جا رہا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ پاکستان میں اسے بننے بھائی سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور یہ بھی باور کروا دیا گیا تھا کہ اب وہی اس کا باس ہے، جس کا ہر حکم بلا چوچراں اس نے ماننا ہے۔ پاکستانی کسٹمز پر بننے کے لوگ اس کے منتظر تھے۔ اس کا سامان بغیر چیکنگ کے کلیئر کر دیا گیا۔ اگلے روز عارف سامان سمیت بننے بھائی کے پاس موجود تھا۔ بننے بھائی کے کارندے نے اس کا سامان اس کی مرضی سے بہتر قیمت پر خریدا اور اسے بننے بھائی سے ملنے کی ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ عارف میاں کے والد صاحب اگلے 20 سال زندہ رہ کر بھی اتنے پیسے نہ کماتے جتنے ان کے صاحبزادے نے اس 1-1.5 مہینے میں کما لیے تھے۔ انہوں نے 1-2 مرتبہ دبی زبان سے احتجاج کیا۔ 2 جوان بیاہنے لائق بیٹیوں کو دیکھ کر پھر مجرمانہ سی خاموشی اختیار کر لی۔ عارف میاں کی امی نے البتہ اس کی خوب بلائیں لیں اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے بیٹے کو بھی بہنوں اور بوڑھے والدین کا خیال آیا اور اس نے کمائی کی طرف دھیان دیا۔ عارف میاں کے ابا اگلے چند سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے اور ان کا مستقبل مکمل تاریک ہو جاتا۔ بننے بھائی سے عارف میاں کی ملاقات اگلے روز ان کے دولت کدے پر ہوئی تھی۔ انہوں نے عارف میاں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو بطور خاص اس بات کی نصیحت کی تھی کہ وہ کسی کو کانوں کان اس بات کی ہوا نہ لگنے دے کہ بھارت میں اس نے کیسا وقت گزارا۔ انہوں نے شام کو اپنے گھر پر ہونے والی میٹنگ میں لسانی تنظیموں کے نوجوان ونگ کو مدعو کر رکھا تھا، جن کے سامنے بننے بھائی نے عارف میاں کا تعارف کروایا۔ انہیں تنظیم کے خصوصی ونگ میں ذمہ داری سونپی تھی۔ اس خصوصی ونگ کا تعلق تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں سے رہتا تھا اور عام ورکرز کو بھی ان کی سرگرمیوں کا کچھ خاص علم نہیں تھا۔ ایک بات پر البتہ وہ سب اتفاق کرتے تھے کہ جب کبھی تنظیم پر کوئی مشکل وقت آتا تو اس کا خصوصی اسکواڈ متحرک ہو جاتا اور چند گھنٹوں میں نتائج بدل کر رہ جاتے۔ بننے بھائی نے تیسرے ہی روز عارف میاں کو کچھ نوجوانوں کے ساتھ شہر کی مشہور جلسہ گاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ یہاں ہونے والے مخالف سیاسی جماعت کے جلسے کو الٹانا اور خاصی گڑبڑ پھیلانا ان کا مشن ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں خاص قسم کے پٹاخے دیے گئے تھے۔ عارف میاں نے پہچان لیا کہ یہ پٹاخے کہاں سے آئے ہیں۔ دوران تربیت انہوں نے ایسے پٹاخے بنانے اور چلانے کی تربیت حاصل کی تھی۔ بننے بھائی نے انہیں مطلع کیا، اس پارٹی کی کمان عارف میاں کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ عارف میاں کا پہلا باقاعدہ جرم تھا جو انہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف کیا۔ عارف نے تخریب کار گروپ کو اپنی تربیت کے مطابق منظم کیا اور یہ لوگ 2-2 کے گروپس میں جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ یہ جلسہ اس جماعت کا تھا جو مستقبل میں کبھی اس لسانی تحریک کے لیے مسائل پیدا کر سکتی تھی، اور تحریک کے سربراہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ تحریک کے لیے پیدا ہونے والے مسائل سے بہر صورت نجات حاصل کریں گے۔ عارف میاں نے اپنے ساتھیوں کو ایک خاص تکنیک کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا تھا۔ جیسے ہی مرکزی لیڈر کی تقریر کا آغاز ہوا، عارف میاں نے جو بڑی ہوشیاری سے نعرے لگاتے اسٹیج کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اور بادیوں نظر میں یوں لگتا تھا جیسے وہ سیاسی جماعت کے جس کا یہاں جلسہ ہو رہا ہے بڑے جاننے سار اور خصوصی ورکر ہیں۔ اسٹیج کے گرد موجود محافظوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ایک پٹاخہ اسٹیج کے نیچے لڑکا دیا۔ اسٹیج کے محافظ جن کی ساری توجہ گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے بلند کرنے پر مرکوز تھی، اس حرکت کا نوٹس نہ لے سکے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں ہڑبونگ مچ گئی۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا جو عارف میاں کے ساتھیوں کو ملا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیا اور افراتفری میں جب ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر دامنگیر تھی، جلسہ گاہ کے مختلف کونوں میں ایسے پٹاخے چلانے شروع کر دیے۔ ایک قیامت صغرا 4 سو برپا ہو گئی۔ جلسے کے حاضرین جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، بدنظمی اور بے ترتیبی سے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کچلنا شروع کر دیا اور درجنوں تو ایک دوسرے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئے۔ عارف میاں نے بھاگتے ہوئے فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ فائرنگ ان کی پلاننگ میں شامل نہیں تھی۔ اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ کسی نے اسٹیج کے قریب سے فائرنگ کر کے اسٹیج پر موجود ایک اہم شخصیت کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس ہلاکت کی خبر جیسے ہی شہر میں پھیلی، ایک ہنگامہ 4 سو برپا ہو گیا۔
बन्ने भाई के लोगों ने एक मुनज्जम साजिश के तहत शहर में गारत गरी और लूट मार का बाजार गर्म कर दिया और अगले रोज अखबारात की चीखती चिल्लाती सुर्खियां बर्बादी शहर और बेगुनाहों की हलाकत के वाकयात से भरी पड़ी थी। ये आरिफ मियां का आगाज था। इस बात का इल्म उन्हें बाद में हुआ कि उस ग्रुप में बहुत से नौजवानों ने उनकी तरह भारतीय कैंपों में तरबियत हासिल की थी, लेकिन उनमें से किसी को दूसरे को बताने का हुक्म नहीं था। इस तंजीम में राजदारी की सख्ती से पाबंदी की जाती थी और पाबंदी न करने की सूरत में इतनी भयानक सजा मिलती थी जिसका तसव्वुर ही बड़ा जानलेवा होता। आरिफ मियां को इस मर्तबा ऐसी ही ड्यूटी सौंपी गई थी। इस बहाने उसका तारुफ तंजीम के उस तफ्तीशी सेंटर से भी हो गया था जिसकी इससे पहले उसने सिर्फ कहानियां सुनी थी। उसे बताया गया था कि बहुत कम खुश नसीब यहाँ से जिंदा वापस जाते हैं। यहाँ सिर्फ दो किस्म के लोग आते हैं, मगलूब और गालिब। गालिब तो वो थे जो तंजीम के सरबराह बाबा साहब के मंजूर नजर हुए, और मगलूब वो जिन पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने के लिए उन्हें यहाँ लाया जाता। इस तशद्दुद की निगरानी, जिसे तफ्तीश कहा जाता था, उमूमन तंजीम के बड़े खुद करते थे, लेकिन इस तरह के ना तो तशद्दुद करने वालों को इल्म होता, ना ही तशद्दुद बर्दाश्त करने वालों को। दोनों को सिर्फ अहकामात की पाबंदी करनी होती। तंजीम के बड़े मुल्हिका कमरे में एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर यहाँ वुकू पजीर खूनी ड्रामे की मुकम्मल कार्रवाई देखते थे, और बतौर खास इस बात का ख्याल रखा जाता था कि कहीं तशद्दुद करने वाले के दिल में मखलूब के लिए नरम गोशा तो मौजूद नहीं। इंसानी फितरत के इस खास पहलू पर उन लोगों की नजर जरूर रहती थी, क्योंकि उमूमन फरीकैन का ताल्लुक एक ही जमात से होता था। जब मुखालिफों को यहाँ लाया जाता तो भी उसी बेरहमी से उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे कि पत्थर दिल पिघल पिघल जाते, क्योंकि रहम नाम का कोई भी लफ्ज तंजीम की डिक्शनरी में मौजूद नहीं था। आरिफ मियां गुज़िश्ता 2 माह से तंजीम के अहकामात की आंखें बंद करके पाबंदी कर रहे थे। इसकी वजह पहले पहल तो मीनाक्षी का इश्क रही होगी, लेकिन अब ये उसकी आदत और जरूरत बन गई थी। तंजीम में अहम मकाम हासिल करने वालों के लिए दौलत, इज्जत, शोहरत और अय्याशी के दरवाजे बड़ी तेजी से खुलते थे, और वो बहुत जल्द सोसाइटी में VIP का मकाम हासिल कर लिया करते थे। ये उसकी खुशकिस्मती की इंतहा थी कि महज 2 माह के बाद ही उसे बाबा साहब से खुसूसी मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा था, वरना तंजीम के हजारों जाननिसार उनकी कदम बोसी की हसरत दिल में लेकर ही मर जाया करते थे। आरिफ जानता था कि तंजीम के हजारों नौजवान अपने बाबा साहब के एक हुक्म पर गर्दन हथेली पर रख कर पेश कर सकते थे। बाबा साहब को तंजीम में एक पुरस्कार रूहानी पेशवा की हैसियत हासिल हो चुकी थी, गो कि वो सियासी लीडर थे, लेकिन उनके पैरोकारों का ईमान था कि वो पुरस्कार कुव्वतों के मालिक हैं, जिनके बलबूते पर वो बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदारों को अपने तलवे चाटने पर मजबूर कर दिया करते थे। बन्ने भाई आरिफ को बाबा साहब से मिलाने के लिए लाए थे। साहबजादे खुशकिस्मत हो, बाबा साहब से एक मर्तबा मुलाकात का मतलब है उम्र भर अय्याशी। महज एक मुलाकात से तुम्हें तंजीम में वो मकाम हासिल हो जाएगा जो बड़े पुराने वर्करों को हासिल नहीं होता। हालांकि उन्होंने तंजीम के लिए बेशुमार जानी और माली कुर्बानियां भी दी हैं। बन्ने भाई ने उसे रास्ते में समझाया। आरिफ ने पूछा, मुझे वहाँ करना क्या होगा? उसने अभी से अपने जहन पर बाबा साहब को मुसल्लत कर लिया था। बन्ने भाई ने कहा, कुछ नहीं, बस सलाम करके अकीदत से बैठ जाना, उनकी बातें सुनना। मियाँ बड़े नसीब वाले हो, उनकी चंद मिनट की सोहबत के लिए बड़े बड़े हुक्मरान तरसते हैं। तुम तो जानते ही हो चीफ मिनिस्टर को भी मुलाकात के लिए कितना एडवांस वक्त लेना पड़ता है। जाने कितनी दरखास्तों के बाद बाबा साहब उसके लिए 15-20 मिनट निकालते हैं। खबरदार, कोई सवाल न करना, बस अकीदत से उनकी बातें सर झुका कर सुनते रहना। पासे अदब रहे। आदाब महफिल का तकाजा है कि बाबा साहब की आंखों से आंखें ज्यादा देर तक दो चार न हो। बस ये समझ लो, और अगर तुमने उन्हें मुतासिर कर लिया तो मीनाक्षी यहाँ तुम्हारे पास आ गई। बन्ने भाई ने आखिरी फिक्रा कहकर गोया तुरुप चाल चल दी थी। इस तंजीम के करता धरता जहाँ शैतान के चैले चांटे थे, वहाँ कमाल के माहिर नफ्सियात भी होते थे, और इंसानी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने के फन पर उन्हें कमाल हासिल था। नौजवानों की कमजोर नब्जों को एक एक करके ये कमबख्त इतने महारत और मासूमियत से दबाते थे कि वो उनके एक इशारे पर ज़िबा होने के लिए तैयार रहते। बाबा साहब का मकान उस शहर के आम से मकानों की तरह था। हालांकि हकीकत में ये मकान ऐसा कला था जिस तक बाकायदा फौज भी मार का सर करने के बाद ही पहुंच सकती थी। उस मोहल्ले में जहां बाबा साहब कयाम पजीर थे, जितने भी मकान थे उन पर अमलन तंजीम का कब्जा था। बादियों नजर में तो ये लोग आम शहरी थे, लेकिन हकीकत में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द। इन सीधे साधे शहरियों के घरों में दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद रहता था।
और किसी एजेंसी को उस तरफ फड़कने की भी इजाजत नहीं थी। इस मोहल्ले में हवा भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं गुजरती थी। बाबा साहब के मकान से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर तक उनकी हिफाजती इंटेलिजेंस का जाल बिछा था। क्या मजाल जो उस तरफ आने वाली ट्रैफिक में कोई आम शहरी हो, यहाँ से गुजरने वालों पर कड़ी नजर रखी जाती। हैरत की बात तो ये थी कि इन इंतजामात को इस अंदाज से तरतीब दिया गया था कि असलियत से बेखबर कोई भी शख्स कभी ये हकीकत मानने को तैयार न होता और वो यही समझता कि ये सारा बाबा साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है जो एक मामूली से मकान में कयाम पजीर है। आज तक ऐसा बहुत कम हुआ था कि बाबा साहब खुद किसी आला ओहदेदार अफसर से मिलने के लिए गए हों। जिस किसी को उनसे मिलना होता वो खुद उनकी रिहाइश गाह पर आकर उनसे मुलाकात करता था। किसी हुकूमती ओहदेदार तक अगर बाबा साहब का हुक्म पहुंच जाता कि वो उससे मिलना चाहते हैं तो उसकी मजाल नहीं थी कि मुलाकात से इनकार की जुर्रत करता। अपने तमाम काम अधूरे छोड़कर वो बाबा साहब की कदम बोसी को भागा चला आता। बन्ने भाई के साथ कार में सवार जब आरिफ चौधरी यहाँ पहुंचा तो उसने खास तौर से अंदाजा लगा लिया था कि बाबा साहब की सिक्योरिटी के इंतजामात किसी सरबराह मुमलिकत से कम हरगिज नहीं थे। हालांकि ये जाल बड़ी मासूमियत से बुना गया था, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस के कैंप में महज एक हफ्ते की तरबियत ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। दोनों मकान के मेन गेट से गुजरकर उस कमरे तक पहुंच गए जिसे मुलाकातियों का कमरा कहा जाता था। ये कमरा खवातीन और मर्दों से खचाखच भरा था। बन्ने भाई को देखते ही करीबन सभी मुलाकाती एहतरामन खड़े हो गए। बन्ने भाई उन सब की तरफ मसनूई मुस्कुराहट उछालते आरिफ का हाथ थामे बगली कमरे में जा घुसे जहां बाबा साहब की सेक्रेटरी और एक खादिम बैठे हुए थे। बन्ने भाई की शक्ल पर नजर पड़ते ही सेक्रेटरी के होंठों पर तरगीब आमेज मुस्कुराहट पैदा हुई। उसने आरिफ चौधरी की तरफ देखकर होंठों को एक खास अंदाज से सुकेड़ा और जिस्म को झटका देकर सीधी खड़ी हो गई। बन्ने भाई ने खातून की तरफ देखकर आंख दबाई। कैसा चल रहा है? उसने अपने जिस्म और दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। एकदम शानदार बन्ने भाई, आपकी रियाया है, बस जरा ख्याल रखा कीजिए हमारा। बन्ने भाई ने कहा, अरे भाई इनसे तो मिल लो, आरिफ चौधरी हमारे खास आदमी हैं, बड़े काम के बंदे हैं, अगर कभी अकेले भी आए तो इनका काम फौरन हो जाना चाहिए। बन्ने भाई के मुंह से जैसे ही ये बात निकली तो खातून ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बांदी को रुखसाना कहते हैं, कभी कोई हुक्म हो तो जरूर याद फरमाइएगा। आप जैसे नौजवानों की खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होती है। रुखसाना ने उसका हाथ कुछ ऐसे अंदाज से दबाया था कि खामखा आरिफ चौधरी जज्बाती होने लगा। बन्ने भाई ने उसे मुखातिब किया, अच्छा छोड़ो इन्हें और बाबा साहब को मुत्तला करो। वो बोली, जैसे आपकी मर्जी बन्ने भाई। रुखसाना ने कहते हुए इंटरकॉम पर बाबा साहब को बन्ने भाई और आरिफ की आमद से मुत्तला किया। इंटरकॉम पर जवाब मिला, भेज दो। रुखसाना ने उसकी तरफ बड़ी गहरी नजरों से देखा था। जाइए जनाब, बड़े खुशनसीब हैं आप। नाम सुनते ही बाबा साहब ने बुला लिया। आरिफ ने भी उसकी उम्मीद के मुताबिक ही जवाब दिया था, शुक्रिया। दोनों मुल्हिका दरवाजे से जिस कमरे में दाखिल हुए वो बिल्कुल मामूली सा कमरा था। सामने एक कुर्सी पर बाबा साहब बराजमान थे और दाएं बाएं कुछ और पार्टी के लोग मौजूद थे। बन्ने भाई को देखकर बाबा साहब के होंठों पर मुस्कुराहट पैदा हुई और उन्होंने बैठे बैठे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बन्ने भाई की तकलीद में आरिफ ने भी अकीदत से उनसे हाथ मिलाया और उनके घुटनों को छूकर बन्ने भाई के साथ ही बैठ गया। बाबा साहब ने वहाँ मौजूद दूसरे लोगों से कहा, आप लोग अब चलिए। तमाम लोग उठकर खड़े हो गए और फर्शी सलाम करके उल्टे कदमों कमरे से बाहर चले गए। बाबा साहब ने दरियाफ्त किया, कैसे हो बन्ने भाई? ये नौजवान वही है। बन्ने भाई ने सर झुकाकर कहा, जी बाबा साहब, गुलाम है आपका जाननिसार है, इसको आपकी खुसूसी शफकत दरकार होगी। बाबा साहब ने उसकी तरफ देखकर कहा, भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ की है बन्ने भाई ने, और हम इनकी कोई बात टाला नहीं करते। बस इसी तरह जी जान से काम करते रहो, सारी जिंदगी ऐश करोगे। आरिफ ने जवाब दिया, जो हुक्म बाबा साहब। बाबा साहब ने बन्ने से कहा, इसे 59 पर लगा दो। बन्ने भाई बोले, ठीक है बाबा साहब, जो हुक्म। बाबा साहब बोले, देखो अजीजी, अब तुम तंजीम के इंतहाई अहम हल्के में शामिल होने जा रहे हो। एक बात का ख्याल रखना कि हमारी बका का राज हमारी राजदारी में है। इस तंजीम में आने के बाद हम सबको सख्ती से एक नज्म का पाबंद होना पड़ता है। जिसने भी उस नज्म से निकलने की कोशिश की या उसके किसी उसूल को तोड़ा, उसे नेचुरली सख्त सजा भुगतना पड़ेगी। बस औकात जान से हाथ भी धोने पड़ते हैं, क्योंकि हम में से किसी एक की गलती का मतलब है इज्तिमाई मौत। हमें ये सौदा नेचुरली मंजूर नहीं होगा। अगर तुम मेरी जगह पर हो तो तुम भी ये नहीं चाहोगे कि एक कारकुन की गलती से हम सब की जानें दांव पर लग जाएं।
हम कोशिश करते हैं कि अपने उस साथी को खुदकुशी का मौका दें। अगर वो खुद ऐसा न करे तो हम ये कार खैर अंजाम देते हैं। यूं भी हमें शहीदों की जरूरत रहती है। जब हमने अपना सब कुछ तंजीम के लिए कुर्बान करने का अहद कर लिया है और अपनी जान भी तंजीम के नाम कर दी है, तो फिर हम एक बाइज्जत मौत से इनकार क्यों करें? मरना तो एक दिन सब ने ही है, लेकिन तंजीम की फलाह के लिए मारे जाने या मर जाने वाले को हम मुमताज मकाम दिलाते हैं। मैं तुम्हें यही नसीहत करूंगा कि किसी कारकुन की गलती को इसलिए भी कभी माफ न करना कि उसका नुकसान हम सबको होगा, उस अकेले को नहीं। तुम समझदार नौजवान हो, मेरी बातों का मतलब जान गए होगे। बाबा साहब नॉर्मल लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बरकी लहर इस दरमियान आरिफ मियाँ के जिस्म में सनसनाती रही। उसे दिल की धड़कन रुकती महसूस हो रही थी। हमने बहुत दुख उठाने के बाद अपने मौजूदा नजरियात पर इत्तेफाक किया है। तुमने देखा इस मुल्क की सियासत हमारे इशारों पर सियासतदानों समेत बंदर की तरह रक्स करती है। तुमने देखा कि मरकज से हुक्मरान हमारी कदम बोसी के लिए इस कुटिया में आते हैं और बिल्कुल ऐसे ही बैठते हैं जैसे तुम और बन्ने भाई बैठे हैं। जानते हो इसकी क्या वजह है? इसकी वाहिद वजह है हमारी बेलचक पॉलिसी। अपने और गैरों के मामले में हम कम से कम अपने मुखालिफिन का वजूद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, ना अपने अंदर ना अपने बाहर। जिसने हमारे नजरियात से इनहिराफ किया हम उसे जहन्नम रसीद कर देते हैं, और तुमने भी यही काम करना है। हाई कमान के अहकामात की तामील करते रहो। सारी दुनिया की अय्याशियां बांदियों की तरह तुम्हारे सामने हाथ बांधे खड़ी होंगी। बस अब तुम जाओ, आज के लिए इतना ही काफी है। ये कहते हुए बाबा साहब ने हिंदू ब्राह्मणों की तरह हाथ खड़े कर दिए। ये इस बात का इशारा था कि अब वो वापस लौट जाएं। आरिफ मियाँ को अगर बन्ने भाई न भी कहता तो भी उनके लिए बाबा साहब की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात करना मुमकिन नहीं था। गहरे रंग के शीशों के पीछे से झांकती उनकी आंखों से न जाने कौन सी बरकी लहरें निकलती थीं, जो सीधी मुखातिब के दिलो दिमाग में उतरती और उसे जेर करती चली जाती। दोनों पहले वालों की तरह उठकर फर्शी सलाम करके उसी तरह उल्टे कदमों पर चलते उसी कमरे में पहुंच गए जहां रुखसाना अपने होंठों की लिपस्टिक को मुंह पर गहरा किए उनकी वापसी की मुंतजिर थी। उसने बन्ने भाई की बजाय बराह रास्त आरिफ को मुखातिब किया। चाय हाजिर है। बन्ने भाई ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, पी लो मियाँ, किस्मत के धनी हो जो पहली ही मुलाकात में रुखसाना के हाथों की चाय पी रहे हो। हमें देख लो, जाने कब से इनके हाथों की बनी चाय पीने को तरस रहे हैं। चलो आज तुम्हारे बहाने हम भी सुरखरू हो जाएंगे। रुखसाना बोली, बस जाने दीजिए बन्ने भाई, यूं ही बनाते न रहा कीजिए। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा आपको और आपकी बातों को। बातें बनाना तो कोई बन्ने भाई से सीखे। क्या मजाल जो गुज़श्ता 2 माह से कभी कोई खैर खबर ली हो। बस 2 मोटी साड़ियां क्या भेज दी, गिले शिकवे शुरू हो गए। रुखसाना ने आरिफ पर करीबन झुकते हुए चाय बनाकर पेश की। ऐसे ही अलल्ले तलल्ले दिखाकर मीनाक्षी ने उन्हें काबू किया था और यही कुछ अब उसके साथ रुखसाना करने जा रही थी। बन्ने भाई ने आंख दबाकर कहा, अरे यही तो बताने आया हूँ, आरिफ से दोस्ती कर लो। इनका भी आना जाना अब लगा रहेगा, इधर भी और उधर भी। वो बोली, ठीक है, हमारा कौन सा जोर लगता है। ये कहते हुए रुखसाना ने एक मर्तबा फिर आरिफ का हाथ गर्मजोशी से दबाया। 15-20 मिनट तक गैर संजीदा गुफ्तगू करने के बाद रुखसाना ने अपनी मेज का दरवाजा खोला और एक बंद लिफाफा आरिफ की तरफ बढ़ा दिया। बोली, बाबा साहब की तरफ से तोहफा है। बन्ने मियाँ ने संजीदगी से कहा, ले लो। आरिफ मियाँ ने लिफाफा पकड़ते हुए शुक्रिया कहा और सलाम करके बन्ने भाई के ताकुब में बाहर निकल आए। एक मर्तबा फिर वो उस पुरहुजूम कमरे से गुजरे थे जहां अब तक तिल धरने को जगह बाकी न बची थी। एक मर्तबा फिर बन्ने भाई को औरतों मर्दों ने चीख चीख कर सलाम करना शुरू कर दिया। बन्ने भाई उनसे आंखें मिलाए बगैर दांत निकालते हुए आरिफ मियाँ के साथ बाहर निकल आए और थोड़ी देर के बाद वो बन्ने भाई के ठिकाने की तरफ उड़े जा रहे थे।